Many parents and students are asking one big question right now. With global tensions and war like situations in the different parts of the world, is it still safe to study abroad this year? Should students go ahead with their plans, postpone them, or rethink the entire decision? Today, we will break down the reality, what is safe, what is risky, and how families should think about the decision. Today, we have Pranay sir, founder director of Edu Nirvana, and our counselor Anukriti ma'am with us to address key concerns and answer the questions currently rising on the minds of parents and students planning to study abroad. Okay, so let's start the session with the biggest question parents are asking. तो सर अभी की करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट्स को अभी अपना स्टडी अब्रॉड प्लान्स कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ टाइम के लिए अभी वेट करना चाहिए? सी दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमारे पास अभी रिसेंट एक हमारा बहुत बड़ा एग्जांपल है कोविड सिचुएशन। वहाँ पे भी बच्चों ने अपने प्लान्स को एक्टिव रखा एंड बेसिकली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉल 26 intake, we have time means we have enough time to decide on like whether we want to go or not, if not this country, which country. So all I can say is they should keep the options open, apply to multiple countries, at least one or two countries, and wait for late July and then decide. And of course, those students who are aiming for masters and their program specifically for 2 years or 1.5 years, then I would say there is no issue. They can go and study. And for the bachelors, definitely they have a longer, timeline for 4 years, 3 years degree. So starting in 26, they'll be probably completing in 2030 or 29. By that time, they'll upgrade themselves and find a better job market, because things are changing very fast. So they have to be keep on updated. And जैसा सो समय है, as you know, AI is like very much changing the things in the industry and environment. So they should, or they have to be updated. या ओके, सो अगर स्टूडेंट्स अभी पोस्टपोन नहीं करते हैं अपनी स्टडी अब्रॉड प्लान्स को, सो कौन सी कंट्रीज हैं जो अभी स्टेबल और ज़्यादा सेफर चॉइसेस हैं उनके लिए, एंड व्हाट फैक्टर्स मेक देम सेफर चॉइसेस? See, there are many factors to be honest, and if you see कि उसमें जो like parameters हैं which I want students to consider is कि पहली बात तो वो यूजी के लिए जा रहा है, पीजी के लिए जा रहा है, फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर वो पीजी वाला स्टूडेंट है तो वो क्या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या फ्रेशर है, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ career plans or future plans in terms of long term that they want to go study and work for 2-3 years and then come back, or they want to settle in that foreign country. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको ऐसे ऑप्शंस रखने हैं जहाँ पे अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टेबल है सिचुएशन या रहेगी, या डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें, वॉर लाइक सिचुएशन, तो वो कंट्री में लीस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसी कंट्रीज चूज कर सकते हैं। एंड स्टिल देयर आर मेनी कंट्रीज, इनफैक्ट जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस थे जो हम बात करते हैं बिग फोर हमारे फील्ड में, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सो if you look into the number of students in studying in these foreign countries, Canada is absolutely not a good choice looking at current situation. UK is again a little crowded, overcrowded. They need to see that okay again यहाँ पे कौन सा बच्चा है, वो यूजी करने जा रहा है, पीजी करने जा रहा है, विच कोर्स दे आर गोइंग, मास्टर्स में क्या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या फ्रेशर है, फिर अगेन विच कोर्स दे आर गोइंग इन यूके. So these things they have to consider. Then in third country talking about US. So US again बच्चा जा रहा है, you know that we have many students going applying to US universities, but mostly हमारे पास अभी UG का बच्चा है, तो they feel safe, they know that okay down the line 4 years हमारी डिग्री है, तो things will change, definitely will change. So anything like we have seen the worst COVID भी चला गया, कोविड सिचुएशन से भी हम बाहर आ गए, बच्चों ने पढ़ाई वहाँ पे भी बंद नहीं की. तो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री है. अगर आप सेफर कंट्री की बात करते हो तो आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक न्यूजीलैंड वेरी सेफ, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है. ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगेन इट्स वेरी सेफ. Although cap is there, every university has their own limit now. They only can recruit this much student. They have the numbers, but still
There are many universities in Australia, so student can look for that country. Then Singapore is there, South Korea, and then European countries like Scandinavian countries, Finland, Sweden, Denmark, Switzerland, Austria is a very good option, or substitute of Germany. So there are options. They need to look, or I would say, revisit their plan and talk to the people those who know, and avoid the people those who are talking about the same country or same countries, which has been like 3-4 years से जो चलता आ रहा है. सो अगर वो 3-4 कंट्री टॉप 4 ले रहे हैं तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन और रिसर्च होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई कैन से. ठीक है सर, जैसा अभी आपने बताया कि ये कंट्रीज सेफर हैं, सो क्या कोई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और नहीं जाना चाहिए अभी बच्चों को? सी ऐसा तो है नहीं पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट, एंड डेफिनेटली यूक्रेन बच्चा नहीं जा रहा है और हम एमबीबीएस करते भी नहीं है, तो वो एक प्रॉपर वॉर में है यूक्रेन एंड रशिया. सो डेफिनेटली दे कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर कंट्री. एंड जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो एक बहुत ही लाइक वी एज वी ऑल्सो हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स, एंड उनसे बात भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में. तो उनका तो ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लाइफ इज़ नॉर्मल. बट अगेन स्टूडेंट्स आर एंड पेरेंट्स स्पेशली दे आर थोड़ा पैनिक्ड. तो अगेन वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है. ऐसा कोई डेंजरस कंट्री तो नहीं है. स्टिल ऑप्शंस आर ओपन. यूएस में भी ऐसा वी हैव स्टूडेंट्स, यूजी के लिए बच्चा जा रहा है, स्टेम प्रोग्राम्स के लिए अभी भी बच्चा जा रहा है. इनफैक्ट यूएस, if you see overall, like I mean whatever is happening in terms of AI, these are all big companies based in US, चाहे वो Meta हो, चाहे वो Google है, या Anthropic है, या OpenAI है. So there is no as such dangerous country. Definitely we are not sending kids to so these are all the safe countries. But yes, before deciding on any country, keep the options open and look for those countries where Indians are less. This is very important. Don't go to overcrowded place where already Indians are huge in numbers. Specifically, I mean, don't fall for the reels and influencers talking about some country or few countries. Look for genuine information, go and check, authenticate that information, and based on that take a call whether this particular country is suitable for you or not. It might be, for example, Germany is good for technical people, especially for those who want to study hardcore engineering programs, tech programs, and ready to learn new language. But it doesn't mean it is good for each and every student. So please put your logic and information, gather right information from right people, and based on that take a call. ठीक है सर, जैसा अभी आपने बताया बिग 4 के बारे में, तो और क्या अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे बच्चों को अभी जाना चाहिए? ऑप्शंस तो बहुत हैं, और आज से नहीं है, बहुत मतलब मोर देन 50-100 ईयर से बच्चा स्टडी अब्रॉड जा रहा है. गांधी जी के टाइम से लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो ऑप्शंस तो हैं, बहुत सारे हैं. बट येस, जैसे अगर हम बात करें साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, New Zealand, Australia, again still it is a better option. Now if you see in this region Europe, so specifically Europe में ऐसी कुछ countries हैं जो English speaking country हैं जहाँ पे आपको एक new language सीखने की ज़रूरत नहीं है. Like Ireland is there, Netherlands में English बहुत हद तक चलती है, तो वो वहाँ पे कोई ऐसा language barrier नहीं है. But see, अभी study abroad is not that easy like it is used to be 15-10 years back. तो कंपटीशन तो आपको हर जगह मिलेगा. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप एक न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो, विच इज़ ऑब्वियसली लाइक इट्स गुड, लाइक लॉट मेनी स्कूल्स इट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड वेरी अर्ली, लाइक 4th-5th ग्रेड से थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन है. तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम आपको बैलेंस करते आना चाहिए. या तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो आप अपनी फील्ड में अपने स्किल सेट को लेकर, या फिर you are ready to learn new language, and you can, the moment you are ready to learn new language, or the early you ready to learn new language, you'll be more comfortable situation or position in coming future, I mean in coming years, down the line 2 to 3 years. Because see, US अभी थोड़ा सा I would say uncertain है, but as I said, UG का बच्चा जा रहा है because they have a long term plans. Australia again little expensive,
and a cap is there. Canada is not a suitable option, and lot many people who are already studied or living there, they are not uh, you know uh, they're still, I mean, they are facing big challenge in terms of many front. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी में अगर देखो, जो जर्मनी बच्चा गया है, जो जा रहा है, उसको भी पता है कि उसको लैंग्वेज तो सीखना है. सिमिलरली अगर आप जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज लगती है, तो वो अगर आप कर लेते हो तो जर्मनी का एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है ऑस्ट्रिया, बिकॉज द फीस इज़ वेरी लेस. एंड यूरोप ओवरऑल, इफ यू सी, यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी इकोनॉमिकल कंट्रीज. एंड इफ यू गो फिनलैंड, Sweden, Denmark, Spain, Switzerland, Italy, you'll find very economical options in top universities, 250 years old universities. And at the same time, if you're going for an English speaking country, make sure you are mentally prepared to put extra efforts when it comes to part time jobs or a full time job. तो ये एक डिफरेंस है, या तो लैंग्वेज सीख लो, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा रहे हो तो पैसे ज़्यादा दो और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो. ये एक मेजर डिफरेंस है. ठीक है सर, जैसा आपने बताया कि स्टडी अब्रॉड प्लान हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होता, तो मोस्टली पेरेंट्स पूछते हैं कि किन बच्चों को जाना चाहिए या किन्हें नहीं जाना चाहिए. मोस्टली ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे. किन बच्चों को जाना चाहिए, देखो ये एक थोड़ा काइंड ऑफ कलेक्टिव क्वेश्चन है फ्रॉम द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि किन बच्चों को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट पहले किन को जाना चाहिए. व्हाई स्टडी अब्रॉड इज बेटर फॉर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. एंड दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली दोज हु वांट टू एक्सेल इन देयर करियर. They are ready to put more efforts, extra efforts, and they are definitely have something edge over others in India, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अगर ये स्किल सेट मैं बाहर जाके पढ़ाई करता हूँ, एडवांस डिग्री लेता हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अच्छे प्रोफेसर से सीखूंगा, अच्छे एनवायरनमेंट में रहूँगा और मैं अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ और मैं एक आई कैन पुट माई सेल्फ इन अ situation where I have to give or put more efforts, extra efforts. Very important, ये एक अपने आप में बच्चे को क्लियरिटी होनी चाहिए. अगर वो ये सोच रहा है कि going abroad is like a easy escape, no, it is not. It is not going to be easy escape. This is a very situation where you have to handle so many things at the same time, mentally, physically, emotionally. सो ये उन्हीं के लिए स्टडी अब्रॉड है और वही बच्चे एक्सेल कर पाते हैं. यहाँ पे मैं एकेडमिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली लाइक 75-70% वाला बच्चा, 65% वाला बच्चा, दे आर डूइंग वंडर्स. दे हैव डन एब्सोल्युटली extraordinary in their career, and they are almost like living in abroad for more than 5 to 10 years now. तो एकेडमिक्स से ज़्यादा अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको लगता है इंडिया में इतना स्कोप नहीं है या इंडिया में अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप उस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो अब्रॉड. अब बात आती है कि किन बच्चों को नहीं जाना चाहिए. ओके, नहीं उनको जाना चाहिए जो बच्चा सोच रहा है कि सिर्फ मैंने ज़्यादा फीस दी है तो मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी. आई वुड सजेस्ट, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ, आप स्टडी अब्रॉड या फॉरेन एजुकेशन सिर्फ इसलिए मत देखो कि आप अफोर्ड कर सकते हो और आप एक इट्स नॉट अ वीआईपी दर्शन, आपने पैसे ज़्यादा भरे तो आपको जल्दी करियर में सक्सेस मिल जाएगी. नो, यू जस्ट गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म इन अ प्लेस वेयर द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, बट यू कैन अफोर्ड टू बी देयर, एंड इफ यू परफॉर्म यू विल बी रिवॉर्डेड. एंड रिवॉर्डेड मीन्स डेफिनेटली जितनी मेहनत आप इंडिया में करके आपको उतना अच्छा करियर या पैसे नहीं मिलेंगे, आप बाहर जाते हो तो उतनी ही मेहनत से कहीं बेटर करियर और पैसे बना सकते हो. सो दिस इज फॉर देम, नॉट फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. ओके, सो लुकिंग एट द पास्ट सर, हमने जो एक मेजर डिस्ट्रप्शन उस टाइम पे देखा था, कोविड-19 था, तो उससे फैमिलीज या बच्चों को कुछ लेसन्स लेने चाहिए ऐसी सिचुएशंस को लेके. लेसन्स तो ऑब्वियसली हर किसी ने लिए हैं और मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड, एंड
that was the biggest, or I would say worst, you know, situation for every family. So उससे बहुत कुछ सीखा है. और डेफिनेटली अभी जैसा मैंने बोला, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी आर लाइक लिविंग. बट हाँ, उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स, दोज हु वांटेड टू गो अब्रॉड एंड वांटेड टू स्टडी इन अ फॉरेन कंट्री, बहुत सारी बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ थी. जैसे वीज़ा ऑनलाइन हो गए थे. अब वीज़ा लेके आप ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दो, फिर जब आपकी बॉर्डर्स खुलते हैं, सिचुएशन नॉर्मल होती है, फिर आप फ्लाइट लेके आ सकते हो. तो ऐसी सिचुएशन पहले बनी थी. हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में इससे ज़्यादा या यही फिर से हो जाए, बट इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा. एक हम ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, सो वी हैव सम लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट एंड लाइक अ रीसेंट पास्ट. एंड डेफिनेटली जो बच्चा उस टाइम गया है वो उस टाइम तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई, चैलेंजेस फेस करने पड़े. बट अभी मैं पूछता हूँ उन बच्चों से तो वो यही बोलते हैं, सर बहुत अच्छा हुआ हम उस टाइम निकल आए. डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, बट इट वॉज द बेस्ट डिसीजन. आई लाइक nobody is regretting that decision they took during COVID-19. And to be honest, this is nothing new, and we have seen this is after 9/11 and 2008 recession and this Iraq invasion and Iraq Iran fight. I mean, there was a big war between them, and these situations are like keep on coming and going. But yes, the people who are now in this current cycle, they want looking for an education. So for them it is very difficult to take decision. But all I can say is this is not happening, or new situation is unfolding first time. It happened before also, and during that time also lot many students went abroad, studied abroad and settled abroad, and they are doing very good in their career. So have some patience, and because again we are sitting in March, and mostly session starts in August, September, and in some cases October. So we have pretty much plenty of time to decide. So this is what I can say from what we learned from past. ओके, सो अभी ना एक और मेजर कंसर्न आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में वीज़ा डिलेज को या एम्बेसी प्रोसेसेस को लेके. सो अभी वीज़ा प्रोसेस नॉर्मली चल रहे हैं या बच्चों को कुछ अवेयर रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? वीज़ा एज सच अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है. किसी भी एम्बेसी ने या किसी भी कंट्री ने कुछ ऐसा पॉज नहीं किया है. इनफैक्ट द वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि जो यूएई में आप देख रहे हो वहाँ भी फ्लाइट्स चल रही हैं, ऑल्दो दे हैव curtailed द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स, बट स्टिल फ्रॉम ऑल मेजर एयरपोर्ट्स इन यूएई फ्लाइट्स आर रनिंग एंड देयर इज नो सच इशू. रही बात वीज़ा की, तो अगेन अभी तो किसी भी ऑफिशियली किसी भी एम्बेसी और ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि हम डिले करेंगे, बिकॉज वॉर इज समथिंग लाइक what is happening in Middle East, specifically in Iran and Israel, US involved. किसी भी कोई कंट्री में ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है. ना वीज़ा के कोई इश्यूज़ है, ना कोई ऐसा ग्राउंड ट्रूप्स हैं ऑन certain or foreign soil. So I don't know, I mean this is going to ऐसा कोई मेजर इशू होने वाला है. तो अभी तो all is good, and looking, I mean we have to wait and watch, because as of now there is no notification. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. लाइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे आपने बताया कि अभी मतलब लाइक जा सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच. सो जॉब मार्केट का क्या है? लाइक स्टूडेंट्स को उसके लिए कुछ इशू आएगा आगे जाने, क्योंकि अभी जैसी सिचुएशंस चल रही हैं, तो जॉब मार्केट इफेक्ट है या नहीं है? See, if you're looking at a shorter or a very short period of time, then it could impact. To be honest, looking I mean down the line 6-7 months थोड़ा difficulty आएगी या आ रही है. इनफैक्ट इंडिया में भी वो इश्यूज दिखने लगे हैं जॉब मार्केट में. बट अगेन अगर आप 1.5 से 2 साल की डिग्री के लिए जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज द टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ. If you're not going to upgrade yourself, and probably when the market is ready to take you, you'll not have a skill set, and then it's like a very disastrous situation
एंड आप फिर कोप अप नहीं कर पाओगे जो मार्केट में चाहिए होगा या जो रिक्वायरमेंट्स होंगी। एंड जो बच्चा यूजी प्लान कर रहा है तो वो तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। They are going to start in 26 late. They'll be done by 2030 or 2029. So 3 साल 4 साल तक तो ऐसा कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। एंड हाँ, एक ये लर्निंग कर्व है उनके लिए। 3 से 4 साल एक लंबा समय होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगेन इट डिपेंड्स। हाँ, बहुत ही फ्रेशर बच्चा है, बहुत ही मतलब बोलना चाहिए नाजुक बच्चा है, तो वो इंडिया में देख सकता है। लेकिन इंडिया में भी चैलेंजेस कम नहीं है। इंडिया में भी जॉब मार्केट या जो स्किल सेट चाहिए, जो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए टूवर्ड्स करिकुलम सिलेबस, वो थोड़ा सा एक विल नॉट फाइंड एवरीवेयर दैट कॉम्बिनेशन। सो येस, down the line 2-3 years, yeah, down maybe after 1.5 years, a year later, there would be no job issues. So I can't see any major issues those who are starting now or fall 26, be it a master's student or UG students, because study is something they are investing for future long term plans है। ये एक तरह से long term investment है। तो सर मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स के तो सभी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, तो आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए? फाइनल एडवाइस यही है, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहें आप। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास ऑफर है और ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आप नहीं जा सकते, डिफर दैट एडमिशन। डिफर एडमिशन मतलब होता है कि आपके पास ऑफर आ गया है, आपको इस इनटेक में नहीं आना है, आपने बोला मैं जनवरी 27 में आऊँगा, तो यूनिवर्सिटी आपको डिफर्ड एडमिशन लेटर दे देती है। आपको अगेन द होल प्रोसेस यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट होल प्रोसेस विच इंक्लूड्स आपको फिर से एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में आप यही कर सकते हो, आप अपनी सीट बुक करो, कंफर्म करो और बोलो कि मुझे इस बार या इस इनटेक में नहीं आना है, आई विल कम और ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट इनटेक, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड एडमिशन। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, be ready for that. I hope this situation will not come, but still parents are very skeptic and they are not sure, uncertain. So this advice you can give to your students. And apart from that, my final advice to all the parents and students कि पहली बात तो आप जो पुरानी चीज़ें सुनते आ रहे हैं या पुराने ऑप्शंस कंट्रीज देखते आ रहे हैं, प्लीज़ explore other options as well, and you have plenty of options available, and starting from very economical fees, as I said 75,000 rupees per semester. So अगर आप UG करने जा रहे हो तो 6 lakh rupees, which is less than in India many private college 1 year fees, whereas you can do the entire degree in 6 lakh rupees, for PG 3 lakh rupees. So starting from this range, you have options in abroad, and that too in top universities, good universities, old universities, recognized ones. So you have options, just don't follow the crowd and don't follow the influencers. Watch reels for the entertainment, not for the career advice. And the last thing I want to say to all the parents and students, don't get panicked. And if you are still confused, not sure, please book a call with us, free discovery call, and our team of experts are available to solve any issues, any queries you have regarding your study abroad plans. Please call on 8518001717. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. It will help us to make more such informative videos like this.